গুড মর্নিং। আজকে হচ্ছে আমাদের ফোর্থ সফর। আজকে আমি আর ম্যাম পেছনে আবার চেঞ্জ হয়েছে। সামনে স্যার আর হর্ষিত। তো আমরা এখন যাচ্ছি একদম আর্লি মর্নিং, 6টা এখনো বাজেনি। আজকে আবার আগার বাগের বাচ্চা দেখবো বলে আমরা বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল। बाहर शिफ्ट होना पड़ा। तो ये 1254 है और 6 to 10 बफर है ना। हाँ वो तो सब कोर्ट में है, कोई एक्टिविटी नहीं है वहाँ पे। फिर भी क्या है कि पहले आदमी की एक्टिविटी और क्या नाम से गाय भैंस चढ़ना सब अलाउ था, तो आजकल नहीं मिलती। 1 to 10 ये भी कोर्ट में आने लगी होती है। ये तो कट रहा है इसका मुंह, आगे लीजिए थोड़ा। जैसे वो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चलो 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 और पीछे लेता हाँ, हूँ। रुक जा। बिल्कुल এটা দূরে হচ্ছে রণথম্বর ফোর্ট, পুরোটা অসাধারণ লাগছে। कहाँ चेक कर रहे हैं हम अभी? कहाँ जा रहे हैं? ये चेक कर रहे हो। আমাকে মুখে দেখা যাচ্ছে ডাকু বাঙ্গল সিং। लाइट इज सो गुड राइट नाउ। अभी दिखा दो, लाइट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लाइट। রেকর্ড দেখছি ফার্স্ট টাইম। মোমেন্ট চোখে দেখা কি আমরা রণথম্বর ফোর্টের সাইড দিয়ে যাচ্ছি। আর প্রচুর বড় বড় ব্যানিয়ান ট্রি, প্রচুর পুরনো, সব ঝুড়ি থেকে থেকে আবার নতুন করে ইয়ে হয়েছে। রেকর্ড করছি ঠিকই, বাট খালি চোখে যেটা দেখতে পাচ্ছি আর যেটা স্মেল করতে পারছি, যেটা ফিল করতে পারছি, সেটা নট পসিবল টু রেকর্ড।
but it was not in that. আরেকটা ময়ূর। এবার আবার একটা ভেজিটেশন চেঞ্জ হয়ে গেল, এতক্ষণ ড্রাই ছিল, এখন কি সুন্দর গ্রিন। ঝোপের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলেছে, চারিদিকে শুধু ময়ূরের ডাক, হরিণের ডাক, বাদরের ডাক। বাঘ তো ডাকবে না, বাঘ ঘুম কাট দেবে। लास्ट एरिया ক্রস করছি, কোনটা দেখলেই কিরকম একটা মনে হচ্ছে পুরনো ঐতিহাসিক যুগের পুরো ফিরে গেছি। এখানে একটা মন্দির, এদের বাবুন বলে তো না ম্যাম, নাকি লাঙ্গুর না, না বাবুন একটু সুন্দর। ওখানে লুকিয়ে পড়লো ভয়ের থেকে, ওরে বাবারে। মানে জন্তু হলে কি হবে, মাতৃত্ব সব জায়গায় দেখা যায়, জঙ্গলেও মাতৃত্ব দেখতে পাচ্ছি। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ করে। এখানে একটা কি সুন্দর বাচ্চাটাকে ধরে রেখে দিয়েছে মাটা। ওয়াও, মায়ের ভালোবাসার কোনো বিকল্প হয় না। বাচ্চাটা দুষ্টুমি করে যাচ্ছে। ও বেরোতে চাইছে, ওকে বলছি কি আর ডেঞ্জার আছে, বেরোবি না একদম, রাতে মুভি দেখাতে নিয়ে যাবো, চুপচাপ বস। সাধারণ সিংহরা খায়, সিংহ বলছি, এক হাতে নিয়ে চলছে। ঘাস খাচ্ছে সব জায়গায়, আর এত সুন্দর হালকা হালকা হাওয়া দিচ্ছে, তপবনের মতন লাগছে না? এখানে কতগুলো জোন। অলরেডি দুবার কল শোনা গেছে, দুবার কল শুনেছি। আশেপাশেই বাঘমামা বসে আছে।
গাড়ি আর দেখা যাচ্ছে সব চলে যাচ্ছে, কি সুন্দর ক্রস করছে রাস্তা। टाइमिंग रही पूरी। বিলিভেবল, মানে এইমাত্র আমরা এই সাফারিটাতে अपनी টোটাল 4খানা দেখলাম। वाली गाड़ी প্রথমেই লেপার্ড निकली দেখি, ना उधर से। প্রথমে একটা লেপার্ড দেখেছি वो हम দৌড়ে लोग ने যাচ্ছিল, फिर घूम के आए ना यहाँ पर। তারপরে দেখলাম হচ্ছে একজন সামনে একদম বসে মাটাক মাটাককে পুরো রাস্তার এরকম মেঠো রাস্তার মাঝখানে বসেছিল, পুরো অনেকক্ষণ ধরে পোজ দিয়েছে আমাদের সামনে ট্যাপ করলো। আর আরেকজনকে দেখলাম, ওর মা ঋদ্ধি বলে, সে একদম পুরো অনেকক্ষণ আধা ঘন্টার ওপরে পুরো ইয়ে করতে বসেছিল। দিতে রাহো। पर लाइट बहुत हार्श था। लेपर्ड अपन ने वहीं देखा था। ও वही देखा हाँ, वो जो बैठी ना জঙ্গলের মতো ওকে বাড়ি গেলে পরে না, ওই কংক্রিটের জঙ্গলে যখন যাব কলকাতায়, उसको ऊपर भी তখন মানে 10 দিন অবধি 15 দিন অবধি এই ভিশনগুলো হন্ট করতে থাকে, যে এরকম গাছ ছিল, এরকম গন্ধ ছিল। কোথাও যেন 1 মাস অবধি নাকের মধ্যে ওই গন্ধটা থাকবে, এই ভিশনটা থাকবে। রাতে ঘুমাবো, সকালবেলা উঠে মনে হবে যে এখনো জঙ্গলেই আছি। তো এগুলো ওই মেমোরিগুলোই নিয়ে যাওয়া, আর কিছুই না। ছিলাম হয়তো মাত্র 2 দিন, বাট 200 দিনের মেমোরি কালেক্ট করে নিয়ে যাচ্ছি। এখনই শেষ হয়নি। এখনই শেষ হয়নি, আর ভি বাকি Never over till it's over. ইয়েস। বাট আপনি তো জুলাই ভার্সারির আগে অবধি কোনো ছুট দেবেন না স্যার, ততদিন অবধি তো এই ভিশনগুলো নিয়েই থাকতে হবে। এখনই মানে এখনো মানে শেষ হয়নি, হ্যাঁ, এখনো জানা। দেখার চান্স আছে। ও ইয়েস, এখনই বাইরে গিয়ে নি আমরা। ओके। बस फोर्ट हमरा मंदिर टाइम नहीं जाएंगे भैया, हाँ मंदिर जाना है। मंदिर चलिए ना थोड़ा सा। अभी थोड़ी चलेंगे तो जाएंगे तो कब जाएंगे? मंदिर में तो 3 घंटे लगेंगे अंदर घूमने में। तो अंदर घूमना नहीं है, मतलब सामने थोड़ा दर्शन नहीं होगा माता जी का? ऐसे कैसे हो थोड़ा? सामने नहीं हो तो उधर से बहुत लास्ट में है। हाँ पर हमारा उधर जा से रहा है। আমরা প্রথমে জঙ্গলে প্রচুর বাঘ দেখলাম, তারপরে আবার গাড়িটাকে টার্ন করে উই আর হেডিং টুয়ার্ডস রানথাম্বর ফোর্ট। ওখানে একটা মন্দির আছে, তো আসার সময় আমাদের প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল যে মন্দিরে যাব। আর ইয়েস, এবার এখানে আবার একটা আলাদা ভেজিটেশন, অদ্ভুত একটা পুরো অনেক বড় বড় গাছ, ছায়াও আছে, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াও লাগছে। এইমাত্র যেখান থেকে বেরোলাম সেখানকার আর এখানকার টোটালি আলাদা ডিফারেন্ট। তো খুব এক্সাইটেড, ম্যান। যখন থেকে জঙ্গলে ঢুকেছি আমার ওই ফোর্টটা দেখে এত মন টানছে, এত অদ্ভুত একটা ফিল হচ্ছে যে একদম ওই ফোর্টের ওপর থেকে পুরো জঙ্গলের ভিউটা কীরকম হবে। মানে যারা থাকতো কোনো এক সময় ফোর্টে,
তারা ওপর থেকে জঙ্গলের কতটা মজা নিত, জঙ্গলের পশু পাখির সমস্ত কিছু একসাথে দেখতে পারতো। তো এটা একটা অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চারের অদ্ভুত একটা ফিলিং আসছে, আমরা দেখতে যাচ্ছি এখন। খুব এক্সাইটেড, মানে মাত্র দুদিনে পুরো নিংড়ে যত নির্যাস আছে সব বার করে নিলাম, সমস্ত কিছু নিয়ে নিয়েছি, কোনো একটা কোনাও ছাড়িনি, কোনো একটা কিছুও ড্রপ করিনি। তো ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য ফোর্ট উই আর গোয়িং, রণথম্বর ফোর্ট। মানে ভাবলেই মনে হয় যেন ইতিহাসের পাতা উল্টে আবার পেছনে চলে গেছি। যেরকম ফোর্টে আগে যখন শুনতাম যে একদম যুদ্ধ হলে পরে একটা রাজা যখন অ্যাটাক করতো আরেকজনকে, তখন সমস্ত হাতি ঘোড়া রাজা রানী দাস দাসী সবাইকে নিয়ে মানে 1 মাস ধরে 15 দিন ধরে সব ট্রাভেল করে ফোর্টে আসতো টু কিপ দেম সেফ। তো এখন সেখানটাতে যাব, অদ্ভুত একটা সেন্সেশন হচ্ছে। এখান থেকেই অলরেডি বিল্ডিং শুরু হয়ে গেছে, জাস্ট দারুণ। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি জঙ্গলে। এখানে কি ফোন বন্ধ? আমরা এখন ফোর্টের বাইরে চলে এসেছি, এখান থেকে পুরো হেঁটে হেঁটে অনেকটা চড়তে হবে। কতটা এনার্জি লাগবে ওপরে চড়তে। আমি ভেবেছিলাম গাড়ি করেই যাবো, হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। एलिफेंट रन करके गेट पे अटैक अगर करेगा तो स्पाइक लगा दिए, क्योंकि इनको अल्कोहल पिलाया जाता था ताकि नशे में हो और स्पीड बनाकर गेट पे मारे। इस वजह से ब्रैकेट भी नहीं थी छटने के लिए। आज का मोटा ही सेफ्टी बॉल बोलते हैं इसको, 23 फीट ऊंचाई बॉल की। पहले क्या होता था, 10-20 सोल्जर्स बिग बुट लेते थे, सिर्फ थ्रो करते थे गेट को, परंतु बॉडी स्पेस नहीं थे। उस टाइम स्लोप होता था, रैम्प हाथी घोड़े चलते थे, जिस टाइप से बाद में बनाए गए थे। अपन को ऐसे इसमें 4 गेट क्रॉस करना, उसका किला स्टार्ट होता है। लास्ट पॉइंट रहेगा अपना लॉर्ड गणेशा टेम्पल, जो वर्ल्ड फेमस टेम्पल ऑल इंडिया हेड ऑफिस माना जाता है, वो लास्ट पॉइंट रहेगा। तो मैं आपको फोर्ट के बारे में, टेम्पल के बारे में, जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व उसके बारे में बताया। ये जो रणथंबोर फोर्ट है सर, बख्तरबंद कहते हैं इसको। गाइड सब बोलते बोलते जाচ্ছে। बख्तरबंद उसको कहते हैं जो 4 तरफ से पैक्ड होता है वो किला। इस किले का एग्जिट एक ही जिससे एंटर किया ना सर, इससे पर वापसी जाना है। इस किले का नाम है बख्तरबंद दुर्ग। बख्तरबंद बख्तर मतलब ओ अच्छा। नो विक्ट्री फोर्ट है, कभी भी इस किले को जीता नहीं गया सर सैनिक शक्ति। अजय दुर्ग रहा है। ये जो रणथंबोर फोर्ट है, ये सेकंड ओल्ड फोर्ट है राजस्थान। आज ओल्ड फोर्ट है चित्तौड़गढ़, जो 1800 इयर्स ओल्ड है। रणथंबोर फोर्ट 1600 इयर्स ओल्ड हो चुका है। 1481 इस किले का नाम है रणथंबोर, जो 3 पहाड़ी मिलाकर रखा गया है। रण पहाड़ी को कहते हैं, बैटल की फील्ड होता है, लड़ाई की भूमि, या पकड़ रहा था उसको कहते हैं रण। जैसे लेफ्ट साइड जो बिग स्टोन देख रहे हो आप, रॉक जो देख रहे हो आप, हाँ। ये लुक लाइक से आपको क्या नजर आ रहा है? गणेश जी, ये गणपति है। गणपति बैक साइड से आपको बैठा हाथी नजर आएगा। बैठा हाथी। यस, इस वजह से इस गेट का नाम है एलिफेंट टॉप। ये नेचुरल है, जब ये पहाड़ काटा तो ये सेब अपना मुर्गा से जानबूझ कर नहीं बनाया कि ऐसा काटने पर ऐसा बन जाएगा। इस वजह नाम है हाथी पोल। एंड जैसे उस टाइम सीमेंट भी नहीं होता था, उस टाइम होता था स्टार्च, उड़द मूंग की दाल, मांड, गुड़, इनको मिक्स करके लगाया जाता था चूने के अंदर। इस वजह से इस किले का जो बाउंड्री वॉल है वो है 7.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ किला है। राजस्थान 3rd लार्जेस्ट और 2nd ओल्डेस्ट में आता है किला, क्योंकि 4 तरफ से कवर्ड है किला। इस वजह से अजय दुर्ग यहाँ पे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली किंग होता है वो भी अटैक करता है, परंतु वो भी स्पोर्ट पे सक्सेसफुल नहीं सका सैनिक शक्ति के बल से, क्योंकि 4 तरफ खाई से घिरा फोर्ट है। 5th सेंचुरी के अंदर कैनन का यूज नहीं होता था। 13th सेंचुरी के अंदर कैनन आई थी, फर्स्ट टाइम इंडिया में बाबर लेके आया था। उस टाइम किले की जो आर्मी रहती थी पहाड़ पे रहती थी, वो लोग पहाड़ से क्या करते थे, बिग स्टोन को पुश करते थे। हाँ, फैल जैसे वो टच होते जाएगा तो नीचे जाकर एक कंक्रीट के रूप में बदल जाएगा वो। अब जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी हार स्वीकार करी, वापस दिल्ली लौट गया था वो, कि सैनिक शक्ति के बल से रणथंबोर फोर्ट में जीतना असंभव अपना। जलालुद्दीन खिलजी भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। मूवी देखा आप लोगों ने पद्मावती? मुगल तो यहाँ की रानी ब्लैक कलर की फ्लैग देखती है तो जौहर कर जाती है। जब राजा को पता लगा कि अपनी पानी वाला जौहर था ना, जल जौहर और अग्नि दोनों ही रहते हैं यहाँ पे। अनमेड जो गर्ल्स होती है हिंदू समाज के अंदर, उनको जलना एक पाप माना जाता था, तो उन्होंने बिग स्टोन से कैरी किया बॉडी को और पानी के अंदर जंप किया।
ताकि जो एनिमल होगा उनको अपना बॉडी भी दिखाई नहीं दे। अलाउद्दीन खिलजी रॉवर एंड टॉर्चर था। 6 ईयर तक इस फोर्ट को कवर करके रखता है, राशन पानी बंद कर देता है इस किले का, ताकि यहाँ की जो आर्मी है भूखी आन खत्म हो जाए। तो उस टाइम राजा का किसी कारण बस अलाउद्दीन खिलजी के कैंपस के अंदर जाना नहीं होता है समझौते के लिए। वो क्या करते हैं, अपने मैन कमांडो को भेज दिए जाते हैं कि आप जाओ और उनसे समझौता करके आओ कैसे भी करके। अब राजा उन पर विश्वास करते हैं, तीनों ही कमांडो वहाँ पे भेज दिए जाते हैं, परंतु वो लालच में आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनको लालच दे दिया, दिखाया राजा बनाएंगे, इस पे हमारी जीत कराओ। तो जब यहाँ पे राजस्थान फास्ट जो हुआ है वो रणथंभौर के अंदर हुआ है। 11 যাচ্ছি উঠছি, গাইড বলতে বলতে যাচ্ছে, রোদে গলা বুক সব শুকিয়ে যাচ্ছে। স্টিল উই আর গোয়িং কজ লাইফ গোজ অন। তো আমরাও যাচ্ছি, ম্যামও যাচ্ছে ফোন নিয়ে নিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে। ম্যাম, হাউ আর ইউ ফিলিং? ইয়েস, সেম হিয়ার। कंफ्यूज गेट, वेलकम गेट, त्रिफला गेट के नाम से जाना जाता है। जब भी राजा महाराजा जीत कर आते थे, उनके कोई भी अतिथि वगैरह आते थे, वो सामने टॉप पर वेलकम मिलता है। यहाँ की जो मेन रानी थी वो थी रंगा और हीरा, वहाँ पे बैठा करके राजा का फुल वर्षा का स्वागत करते हैं। एंड तोरण द्वार इस टाइम जो भी सैनिकों की शादी वगैरह, इस गेट का नाम যেখানে নাকি রাজা ক্যাপচার করতো অন্য পক্ষের, শত্রু পক্ষের লোকজন আসলে পরে। চলেই যাচ্ছি, চলেই যাচ্ছি। লুক অ্যাট দিস ভিউ ম্যান। क्योंकि राजा और प्रजा एक साथ रहती थी। अच्छा, प्रजा में जितनी भी शादी होती है वो दूल्हा महल के अंदर की जाती है। जो स्टेज दिख रहा है आपको आगे, यहाँ बरमाला प्रोग्राम किया जाता है। ओके, गेट आपको छोटे दिखाई देंगे। उसका रीजन था क्योंकि राजा के रूल चलता है कि उसके आगे कोई सिर उठा के नहीं जाए। जैसे बरमाला पहनेगा सिर उठा के नहीं। दोनों तरफ मेहमानों बैठने के लिए बना रखे, एक तरफ लड़का पक्ष है, एक तरफ लड़की पक्ष है। बीच में स्पेस दे रखा, वहाँ पर फिर होगा प्रोग्राम के लिए मंडप, और बारात को ठहराने के लिए उधर व्यवस्था थी। दूल्हा व दुल्हन के मेकअप रूम ऊपर दोनों साइड में बना था। तो ये समय का मैरिज पैलेस था, और गवर्नमेंट दोबारा से इसको रेनोवेट करवा रही ताकि दोबारा से इसको शादी स्टार्ट करें। तो उसके लिए इसको तैयार किया जाए। ये जैसे दूल्हा आता है उसके लिए नाश्ता देने के लिए आगे बना, वाह, तो उस हिसाब से इसको बना। तो आपका बेटे का शादी यहीं हुआ? बेटी का हो सकता है सर क्योंकि हम तो क्या गाँव में करते ज़्यादातर। ये यहाँ तो सर जो मेन लोग आएंगे, वीआईपी लोग, उनका होगा। এটা হচ্ছে সৈনিক লোকদের কবরস্থান, গ্রেভস। আর ওখানে আবার একটা মসজিদ, जो कि फोर्ट के अंदर का है, 5 तालाब के फोर्ट के अंदर। फर्स्ट ये है रानी तालाब। यहाँ पे रानियाँ स्नान किया करती, इसलिए इसको रानी तालाब का नाम दे गया। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये रानियों का चेंजिंग रूम हुआ करता है। आर्किटेक्ट मुगलों ने इस पर चेंज करवा दिया, बोटिंग के जरिए उनको उधर ले जाएंगे। उसके अलावा एक बावड़ी है, इसमें स्टेप वाली, पानी में डूबी हुई है अभी। जैसे जल स्तर कम होता है, स्नान करने के लिए फिर बावड़ी हो जाती है। उसके अंदर है? हाँ, अभी डूबी हुई है। उसके अलावा एक कुआं में सामने जो दिखा, फिल्टर होकर जो पानी जाता जमीन से, इसको पीने के कार्य में। तो दोनों कार्य होते थे यहाँ। निर्माण इसलिए हो गया क्योंकि जब फोर्ट का निर्माण कराया तो यहाँ से पत्थर निकाले गए दीवार में। तो इन्होंने क्या तालाब का निकाला, बरसात का निकाला, इस हिसाब से राजा ने रानी जल जोहर वाला आएगा, जो इनकी पुत्री ने जल जोहर किया तो वो अब नेक्स्ट যাচ্ছি। हाँ, बहुत बड़ा है। एक दिन में कवर नहीं होता, इतना बड़ा है। ये तो आधा हिस्सा तो इसको बंद कर रखा है क्योंकि लास्ट में हादसा तो टाइगर का वहाँ फोर्ट के अंदर इस कारण से आधे হাঁটতে কেলিয়ে যাচ্ছে। बाबू पर आई गया तो मुझे दिखाई दूंगा बिन बाबा चल गए जी खींच ले आपकी बात क्या आजा मेहमान। इसको नाम दिया गया 32 अमरेला, 32 खंभों की छतरी का नाम दिया गया।
इसको राजा हमीर देव ने अपने पिताजी की याद में बनाया था, क्योंकि पिताजी का नाम था जत्र सिंह चौहान। उन्होंने क्या यहाँ 32 ईयर्स तक रूल्स किया। 12वें फिर आपको दिखाई दे रहा है ये हवन कुंड हुआ करता था। मुगलों के टाइम पे इसको दीवाने खास का नाम दे दिया, इसको फाउंटेन बनाया, हवन कुंड। इसी के नीचे उन्होंने भगवान शिव की स्थापना कराई थी, गुप्तेश्वर महादेव की। 750 years old है, साढ़े এটা আজকে লাস্ট ডে ইন রণথম্বর। লাঞ্চ ফাঞ্চ হয়ে গেছে, রেস্ট টেস্ট হয়ে গেছে। মাঝখানে আমি ভিডিও নিতে পারিনি, কেননা ভিডিওতে আবার স্পেস প্রবলেম হচ্ছিলো। এখন দেখলাম আবার ঠিকঠাক হয়েছে। তো বাই বাই রণথম্বর। আজকে এখান থেকে আমরা গাড়ি করে বেরোবো জয়পুর। জয়পুর যেতে 3.5 ঘন্টা লাগবে। প্লাস তোমাদেরকে আরেকবার দেখিয়ে দিই এখানকার প্রপার্টিটা। আমরা এখন সবাই রিসেপশনের দিকেই যাচ্ছি। এটা ছিল দ্য হোল প্রপার্টি, সুইমিং পুল। এদিকে সব একটা একটা করে কটেজ ছিল। কটেজগুলো আমি জিজ্ঞেস করে যা জানতে পারলাম, মোটামুটি বোধহয় ওদের 10K করে এক একটা কটেজ অনলাইনে। আমাদের হয়তো একটুখানি কীরকম পড়েছে জানি না প্যাকেজে। বাবা এখানে জল দিয়ে রেখেছে, দাদা। আর সন্ধেবেলা এখানটাতে হাইটি লাগে। আর ওই দিকটাতে ছিল রেস্টুরেন্টটা, যেখানে তোমাদেরকে দেখিয়েছি অনেকবার খাইয়ে টাইয়ে। জঙ্গল থেকে প্রত্যেকবারই চলে যেতে অবভিয়াসলি খুব মন খারাপ লাগে। আর এখানে একটা দোলনা আছে, আমি যাওয়ার আগে একটু দোলনা চড়ে নেব। সুইমিংও হয়ে গেছে, সবই হয়ে গেছে, দোলনা দোলা হয়নি। এটাতে একটা সুইং রয়েছে। মানে যাওয়ার আগে অবধি যত লাস্ট প্রপার্টির করা যায় তত বেশি ভালো লাগবে। ইয়েস, লেটস গো। I have to pay 100 rupees to there.